At the very outset, I, Geeta Thapa, the host for today, would like to extend a very warm welcome to all our reverend guests and respected brothers and sisters who are attending this interfaith prayer meeting. We are undergoing an unprecedented catastrophic situation that most of us had never experienced in our lives. As a result, we are troubled, turmoil, physically, mentally, and emotionally. The main reason for all this is people are becoming pessimistic. But we all must remember that life is precious. No matter how worse the circumstances may become, but the true essence of life always remains that it gives us hope and face all adversities with courage, with the belief that there is a power which is always guiding us and is always there to take care of us. Regardless of any epidemic which has fallen over human civilization, this power assures us that this period of crisis shall pass. When we decide to take the moment of prayer, let us all offer our humble supplication in this prayer meeting today, seeking His assistance to help us in the work of nurturing within human souls the attributes that are most required at this time: unity and fellow feeling, knowledge and understanding, a spirit of collective worship and common endeavor. With this introduction, I would like to introduce our main speakers for the Interfaith Prayer Meeting today. It is a prayers and reflections for peace. The main speakers are, the first speakers for today's session will be Maulana Azmalji. Second speaker will be Sister Neha. Third speaker will be Bishop Ignatius Loyola Mascarenhas. Fourth speakers will be Professor Rajinder Singh. हरे कृष्ण प्रणाम महाराज जी प्रणाम Pranam ji. Fifth speaker will be Swami Vishnu ji Maharaj. Sixth speaker will be Swami Atmananda ji. नमस्कार Namaskar ji. Seventh speaker will be Mrs. Harjinder Kaur. And last but not the least, our eighth speaker will be Professor Anil Sarwal. So, without any delay, I would like to give the chance to speak to the main speaker, that is Maulana Azmal ji. हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस पे प्रकाश डालिए और इंटरफेथ प्रेयर मीटिंग की शुरुआत कीजिए. ओवर टू मौलाना अजमल जी. जी बोलिए. मैं सबसे पहली बात तो ये कि आज जो ये अमन और शांति का जो प्रोग्राम है, मैं इसके ऊपर जो है जो इसको कर रहे हैं हमारे ख़ास तौर से भाई से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज की ज़रूरत को समझा है. आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है अमन की और शांति. आज दुनिया अमन के लिए तरस रही है और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब ये कोरोना जैसी बीमारी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और ये बतला दिया है कि कोई आदमी कितना ही बड़ा हो, कोई बड़ा नहीं है. बड़ी ज़ात सिर्फ एक है जो सबको पैदा करने वाला, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, और अपने हिंदू धर्म में कोई और नाम से पुकारते हैं. उसने ये बतला दिया है कि आज जो है सिर्फ उसकी ज़ात बड़ी है और कोई बड़ा नहीं. और आज इंसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अमन की है, शांति की. तो मैं तो यही अपील करूँगा कि हम जो है अमन और शांति और दुनिया में रहने वाले हर मखलूक के साथ में प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़. हमारे हज़रत मोहम्मद साहब ने एक बात इरशाद फरमाई, इरहमू मन फिल अर्द. ये अरबी का शब्द है
तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हम इंसानों पर रहम करना सीखें। आज दुनिया जो है चारों तरफ को बम्बारमेंट चल रहा है, चारों तरफ को इंसानों खून बह रहा है, तो खुदा ने भी ये बीमारी भेज दी है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो है इन तमाम चीज़ों से अपना आप को बचाएं और एक खुदा के सामने सर झुकाएं। और खुदा की मखलूक सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जितने जीव जंतर हैं ये सब खुदा की मखलूक है। सब पर रहम करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म सिखाता है। और कोई भी धर्म अशांति नहीं सिखाता, शांति सिखाता है। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि आज जो है हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हम सब को दुनिया में प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है। खुदा की मदद जब आती है जब इंसान एक दूसरे का अदब करता है, आदर करता है। और आदमी अपने आप को ये न समझे कि मैं अगर किसी के सामने झुक जाऊंगा, मैं अपने आप को छोटा समझूंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा। बल्कि हज़रत मोहम्मद साहब ने इरशाद फरमाया है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिसका अर्थ और तर्जुमा यह है कि जो खुदा के लिए झुकता है, ईश्वर के लिए झुकता है, ईश्वर उसको ऊंचा उठा देता है। मेरा पैगाम आज उसमें यह है कि हम जो है अमन और शांति बरकरार रखें। हर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत और प्यार से रहे। हम एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, मानो किसी को भी, लेकिन किसी के धर्म का तौहीन न करो। तो मैं हमने अपने भाई फिरके के हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट और भाई सब बैठे हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि हम बात जो करें वो हिंदी में करेंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम अंग्रेजी में बात करें। उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है आप हजरात के समझ में आई होगी, ताकि मैं भी आपकी बात को समझ सकूं। क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने बचपन में हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, इसलिए हमें बात समझ नहीं आती। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि आप जो है हिंदी में बात करेंगे। धन्यवाद मौलाना अजमल जी। जरूर हम हिंदी में आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, पर हाँ ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले ही हैं। हम जरूर, आपको दरखास्त करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे सिर्फ हमें आज्ञा दीजिए कि हम हिंदी में ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी। मौलाना अजमल जी ने बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अहम चीज़ों के बारे में, धर्म की अहम चीज़ों के बारे में बताया कि ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी का जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, और जिसके तहत जो धर्मों में विभिन्नता दिख रही है। और मौलाना अजमल जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि हम सभी बराबर हैं। और उन्होंने अमन की बात की है, शांति की बात की है, जो कि बहुत महान बात की है। और इसी की अभी हमें, हमारी दुनिया को, हमारी पूरी पृथ्वी को इस चीज की जरूरत है। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें एक दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। इसकी एक नीड जिसे कहते हैं, अभी समय की मांग है कि एक दूसरे का आदर करें और अमन और शांति के साथ करें। मैं दोबारा से मौलाना अजमल जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने सुंदर शब्दों को हमारे साथ बांटा।
अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सिस्टर नेहा जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सिस्टर नेहा जो हैं वो ब्रह्म कुमारी मिशन से हैं। वो शी इज अ राज योगा टीचर, वो राज योगा टीचर भी हैं एंड शी हैज बीन एसोसिएटेड विद ब्रह्म कुमारी सिंस चाइल्डहुड। और वो ब्रह्म कुमारी से मिशन से 15 साल से जुड़े हैं, बचपन से ही। अब मैं चाहूंगी कि सिस्टर नेहा आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सिस्टर नेहा, ओवर टू सिस्टर नेहा जी। Most representative of all faiths and all the brothers sisters who have joined with us. ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। जैसे हम सभी समझ रहे हैं कि हम सभी एक ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ऐसे टाइम पर जब हम सभी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें अवेयरनेस है, हम दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें, मास्क पहन के रखें, साथ में हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, घर की सफाई है, हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि उस लिस्ट में हमारी जो प्रायोरिटी है वो राइट थिंकिंग की होनी चाहिए, क्योंकि भले हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, घर को साफ कर लिया, लेकिन अगर उस घर में जो एनर्जी है वो सर्कुलेट हो रही है जहाँ फियर और एंजाइटी है, वो घर साफ नहीं। वो बाहर की देखभाल तो फिर भी आसान है, लेकिन वो मन जो फियर, एंजाइटी, पैनिक क्रिएट करता है, तो वो वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। और हम इस टाइम पर जब बाहर की परिस्थिति क्राइसिस वाली है, बाहर की स्थिति ऐसी है, तो हम वो नेगेटिव इमोशन क्रिएट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा एक एक थॉट कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे मन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है। अगर हम बात करें तो जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं वो हर थॉट सबसे पहले हमारी फीलिंग को अफेक्ट करता है, उसके बाद वो थॉट हमारी अपनी बॉडी के हर सेल को अफेक्ट करता है। हमारा हर थॉट हमारे परिवार जनों को, हमारे नेबर्स को, आसपास व्यक्ति को अफेक्ट करता है, और हमारा थॉट प्रकृति को भी अफेक्ट करता है। हमारे थॉट का इफेक्ट, उसका डैमेज इतना ज्यादा है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जब हम इकट्ठे मिलकर सभी प्रेयर करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर मेडिटेट करते हैं, या इकट्ठे मिलकर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो किस लिए? क्योंकि वो वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलता है। कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन क्रिएट मिराकल्स। और वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब फियर और एंजाइटी की होगी, क्योंकि हम फील कर रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में एक वातावरण बना हुआ है, वो फियर, एंजाइटी, पैनिक का बना है। तो जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फियर और एंजाइटी की होगी, तो वो कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेगा। जो बाहर से डिजास्टर आया है तो फिर भी हम उससे संभल जाएंगे, लेकिन ये जो डिजास्टर है ये तो बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। जहाँ हम बाकी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो साथ साथ अपने मन की सफाई, हमारी राइट थिंकिंग पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी राइट थिंकिंग ही हमें एम्पावर कर सकती है। जब बाहर क्राइसिस नहीं है उस टाइम पर अगर हम फियर एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो वो इतना डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन जब बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं और उस टाइम पर अगर हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और उस क्राइसिस को फेस करने वाला अगर डैमेज है तो कैसे फेस कर पाएगा? तो हम ऐसा समझते हैं कि इसलिए आज कहीं ना कहीं ज़रूरत है अपने आप को ये बार बार सिखाने की, बार बार समझाने की, कि जो भी हम इस टाइम पर सोच रहे हैं वो मेरा एक एक थॉट बहुत पीसफुल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए, मेरे अपने भले के लिए होना चाहिए, कोई नेगेटिव इमोशन हमें
नहीं क्रिएट करना है। और शायद इसी पर्पस के लिए ये आज की इंटरफेथ प्रेयर मीटिंग रखी गई है। अभी कुछ क्षण के लिए हम सभी मिलकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करें, एक अच्छी सोच, एक अच्छा थॉट क्रिएट करें। तो हम अगले 2-3 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। आइए कुछ क्षण के लिए हम सभी मेडिटेट करें। एक बार हम सभी एकाग्र होके बैठेंगे। अपने मन को ये संकल्प दें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ, जो सोचूं, वो कर सकती हूँ। I am a powerful being. मैं एक शांत आत्मा हूँ। I am a peaceful being. मेरा हर शब्द, मेरी हर सोच बहुत स्टेबल है, शांत है, राइट है, पीसफुल है। My every thought and word is a blessing. मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मेरी हेल्थ परफेक्ट है and it would be always. मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरी जॉब, मेरा बिजनेस सेफ है। सफलता मेरी निश्चित है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। परमात्मा की प्यार, शक्ति और पावर्स के अंदर सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियों का एक एनर्जी सर्कल मेरे आसपास है। ये परमात्मा की शक्तियों का एनर्जी फील्ड है। ये मेरा सुरक्षा कवच है। Nothing can enter in this energy circle. मेरा परिवार सुरक्षित है। परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के आसपास है। परमात्मा की प्यार और शक्ति के अंदर हम सब सुरक्षित हैं। परमात्मा की शक्तियों का घेरा, सर्कल ऑफ प्योरिटी पूरी सृष्टि, पूरे प्लेनेट के आसपास है। और उसके अंदर विश्व की हर आत्मा सुरक्षित है। जो चीज आई थी वो जा चुकी है। इट्स ओवर एंड फिनिश्ड। अब कभी वापस नहीं आने वाली। हमारा विश्व प्रोटेक्टेड है। भगवान की छत्र छाया के अंदर हम सभी बहुत सुरक्षित हैं, सेफ हैं। विश्व की हर आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में सेफ और सुरक्षित है। ओम शांति। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू अनिल भाई जी, जिनके एफर्ट्स, जिनके इनिशिएटिव ने इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर नेहा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में थॉट्स के बारे में बताया कि हमारी जो राइट थिंकिंग है, हमारी जो सही सोच है, वो कैसे जो हमारे अंदरूनी चीज़ों को अफेक्ट करता है। क्योंकि हम क्लेanलीनेस की बात कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के क्राइसिस में, लेकिन हम अंदरूनी क्लेanलीनेस की बात नहीं करते हैं। ये आपने बहुत ही सुंदर बताया। हम दोबारा से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया और हम मेडिटेशन करवाया, और हमारे थॉट्स को क्लीन करना हमें कैसा करना चाहिए, और पीसफुल थॉट्स को हमेशा हमें अपनाना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि अगर हमारा मन अगर साफ नहीं होगा तो हमारी बाहर की चीजें भी हमें साफ नहीं दिखाई देंगी और हमारी जिंदगी भी साफ नहीं रहेंगी। थैंक यू सो मच सिस्टर नेहा once again. Now we go to the next speaker.
तो जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं, he is Bishop Ignatius Mascarenhas. I would like to give the introduction of Bishop Ignatius Mascarenhas. He is presently the Catholic Bishop of Shimla, Chandigarh Diocese, and he is the Bishop of this diocese from 2009. He ministers from Christ the King Cathedral at Sector 19E, Chandigarh. He is President of Shimla Chandigarh Education Society and Chairman of Small Christian Communities of India. We welcome you, Bishop Ignatius Mascarenhas. Over to you. I can't see his name, but we request him, if he is there, could he kindly start speaking? Bishop Ignatius Mascarenhas, can you hear me? I think he's not there. There must be some emergency. About 65 people are connected to us just now. So I would request everyone to keep to the time frame, because we have to, it was to be over by 7:45, but yes. Okay. So we go on to the next speaker. हम next speaker की ओर चलते हैं. Mr. Professor Rajinder Singh हमारे next speaker हैं, speaker number 4. और प्रोफेसर राजेंद्र के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इज एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑन गुरबानी. गुरबानी में वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी दिया है, अपना योगदान भी दिया है होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ. तो कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अपना एक बहुत ही अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है. मैं चाहूंगी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी अब अपने विचार प्रकट करेंगे. थैंक यू. प्रोफेसर राजेंद्र जी, ओवर टू यू. First of all, I would like to thank Anil Sarwar ji for conducting this very important and very beautiful meeting. और जो ये इंटरफेथ मीटिंग है, आज का जो समय चल रहा है कोरोना का और वर्ल्ड वाइड ये क्राइसिस है, उसके अंदर हमें लोगों को मन की शांति के लिए कुछ कराना होगा. तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जो ह्यूमैनिटी को जो पीस एंड हैप्पीनेस, जो बेसिक नीड है जो ह्यूमैनिटी की, वो हम उनको पूरी दे नहीं सके. और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5000 साल से हमने वो जो चीजें इंसान को सिखानी चाहिए थी, सिखाने की कोशिश ही नहीं हुई प्रॉपर तरीके से. हमारे गुरु पीर पैगंबर आए और वो अपने समय में बात कह के चले गए, लेकिन हम लकीर को पीटते रहे. हमने रिचुअल तो फॉलो किए, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी वो नहीं फॉलो की. जैसे हमारे गुरबानी में है कि देही अंदर पंचोर बसत, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे कोई न सुने पुकारा. ये शब्द जो है ये गुरु अमरदास जी का गुरु ग्रंथ साहब के 600 अंक के ऊपर है. तो इसमें क्या है कि हमारे देही के अंदर जो 5 चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो अमृत तो लूट जाते हैं और हमारे अंदर जो शांति है, जो हैप्पीनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती. और इसके लिए हमने कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया. गुरुद्वारा मंदिर और मस्जिद में और जहाँ गिरजाघर में जो कुछ होता है, वो इसके लिए कोई ठीक से प्रयास नहीं हो रहा. और इसीलिए जो ह्यूमैनिटी है वो सफर कर रही है. और जब हम इसको धर्म को अगर हम समझें और इसको साइंस के तरीके से इसको अप्लाई किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है. हमारे एक दिन में 86,400 मिनट्स होते हैं और वो सब लुट जाते हैं. और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत ही सही शब्दों में कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. हमें धर्म को पालन तो करना है और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. उसके जो मेन जो हमारे को जो शिक्षाएं हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पाए. गुरबाणी में एक शब्द आता है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे. हमारे अंदर जो शब्द है ये कहता है कि जो प्रभु है वो हमारे अंदर बसता है. हम गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जाकर के वहां जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वहां जाना एक रास्ता है, लेकिन वो मंजिल नहीं है. मंजिल जो है वो हमारे अंदर ही है. तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान गुरबाणी कहती है. जब तक हम अपना मूल नहीं पहचानते
हम कभी भी शांति को पा नहीं सकते। और जब तक शांति नहीं पाई जाती तब तक दुनिया कभी शांत नहीं होगी, दुनिया कभी हैप्पी नहीं होगी। और दुनिया में कभी भी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और सेकंड हुई, जो टावर अमेरिका में ट्विन टावर जो डिस्ट्रॉय किए गए, 47 में जितना लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, या अब भी दिल्ली के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनमें ज्यादा तौर पे धर्म के जो हमारे शिक्षाएं हैं वो जिम्मेवार है। लेकिन अगर धर्म को ठीक तरह से बता दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ी शांति हो ही नहीं सकती। दुनिया पूरी शांत हो जाएगी, कोई बंदा क्राइम ही नहीं कर सकता। तो गुरु नानक ने कहा है कि एक ओंकार सतनाम, सच का एक ही नाम है, दो नहीं है सच के नाम। और वो सच जो है उसको हम एक ओंकार जो है, वही ओंकार हमारे वेदों में है, वही ओंकार हमारी गीता में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं वेदों में मैं हूं, ओंकार मैं हूं, बाकी जो सब कुछ है उसको चाहे आप निकाल भी दो तो मेरी सारी जो मैं है उसमें विराजमान हूं। गायत्री मंत्र जब हम कहते हैं तो उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम आता है। हमारे सिख धर्म में जब हम गायत्री मूल मंत्र की बात करते हैं, एक ओंकार सतनम की बात करते हैं, ओम नमो शिवाय की बात करते हैं। जो लंका के जो पुराने सिक्के मिले हैं श्रीलंका में, 200 BC के सिक्के हैं वो, उनमें भी ओम है। श्रीलंका के बाद नेपाल का के अंदर ओम चलता है। दुनिया के सभी धर्मों का जो आधार है वो ओम है। अगर हम ओम के ऊपर पहरा दें, ओम को समझें कि ये क्या है, एक ओंकार सतनाम, आगे सतगुरु प्रसाद। सतगुरु प्रसाद क्या है? जब हम एक ओंकार या ओम के ऊपर हम पहरा देंगे तो हमारे अंदर जब शांति होगी, हमारे अंदर दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग बसते हैं, चाहे वो गोरा है, काला है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे वो धर्म को मानता है चाहे वो नहीं मानता, लेकिन हमारे अंदर एक धुनी जिसको हम अनहद नाद कहते हैं वो अंदर हमारे चल रही है, हर इंसान के अंदर चलती है। और जब हम इस धुनी को प्राप्त हो जाते हैं तो हम कोई क्राइम कर ही नहीं सकते, कोई हमारी पीस भंग कर ही नहीं सकता। हम कोई हमारे पास ढोल बजाए हमारे मन की शांति को, मन की एकाग्रता को कोई भंग कर ही नहीं सकता। तो जो असल बात जो है वो कभी बताई नहीं गई किसी को, हमारे प्रचारक ना तो खुद जान सके और ना किसी को बता सके। तो इसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा है कि द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन लाइफ इज मिस्टिकल सेंसेशन, एंड this is the soul of all scientific research. To whom this sensation is stranger can do no wonder in the world, and he is as good as dead. यानी कि जो मिस्टिकल सेंसेशन है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इसी को गुरबाणी कहती है ठाकुर मेरा सदा बुलंदा, इसी को गुरबाणी कहती है कि जिन खोजा तिन पाया, इसी को गुरबाणी कहती है सहजे अनंत शब्द बजाया, सहजे रुण चुनकार सुनाया, या अनंत बाणी पूंजी सतगुर हाथ राखी पूंजी। सो जब हम अनंत नाद की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम अनंत नाद की तरफ, अगर हम दुनिया को अनंत नाद की तरफ लेकर जाएं स्वामी जी, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, क्योंकि सभी धर्मों का जो प्रभु जिसको हम कहते हैं अंदर हमारे है, वो हमारे अंदर प्रभु वाकई है। क्योंकि जब हम हमारे सभी के अंदर अनहद नाद मौजूद है, हमारे अंदर सभी के अंदर वो अनहद नाद चल रहा है, 24/7 होल लाइफ चल रहा है, लेकिन हम उसको प्राप्त करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर उसको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि हमारी गुरबानी कहती है कि अनंत बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, जो अनंत नाद है उसकी एक छोटी सी कुंजी है, उसको अगर लोगों को बता दिया जाए, उस कुंजी से वो ताला खोलना बता दिया जाए, तो हर आदमी को ये प्रसाद जो बानी में कहा गया ना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये प्रसाद है उस प्रभु का, ये सभी को मिल सकता है। और जब ये प्रसाद मिल जाएगा तो दुनिया का कोई आदमी क्राइम कर ही नहीं सकता। और मैं ये कहता हूँ, मुझे खुद इसकी प्राप्ति हुई है, और मैंने तो केवल 1 हफ्ता इसकी मेहनत करी और मुझे इसकी प्राप्ति हो गई। तो ये मैं नहीं कहता कि मुझे प्राप्ति हो, कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं, मैं बहुत बड़ा कोई सेवक नहीं। अगर मुझे प्राप्ति हो गई है, मैंने बहुत लोगों को बताया है तो उनको प्राप्ति हो गई। और ये जानबूझ के हमारे जो महात्मा लोग हैं, जो ब्रह्म पुरुष जिनको हम मानते हैं, जिनको पैगंबर मानते हैं, जिनको बड़े गुरु मानते हैं, वो लोगों को ये बात या तो बताते नहीं या उन्हें खुद पता नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की जाए तो हर आदमी को अनहद नाद
दिव्य ध्वनि जिसको कहते हैं, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं, साउंड ऑफ एनर्जी कहते हैं, साउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, साउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो तो कोई कहीं गई नहीं। जब हम अंदर से ओम के साथ जुड़ करके थोड़ी देर प्रभु का सिमरन करते हैं, तो हमारा जब अंदर शांत होता है, तो हमारे अंदर आवाज तो है, अंदर जब सिर्फ अंदर को शांत करने की जरूरत है, अंदर जब शांत हुआ तो वो ध्वनि उतर आती है और वो प्रसाद हमें मिल जाता है। एवरी ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ लिसनिंग दैट प्योर साउंड ऑफ गॉड। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम क्राइम छोड़ना चाहते हैं, दुनिया में पीस, प्यार और हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हम हर इंसान को हर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में कुछ एक हफ्ते का ये ट्रेनिंग, इन सभी हमारे जो इनके प्रमुख हैं इन धार्मिक स्थानों के, उनको आनंद नाद की ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाए, तो मैं कहता हूँ ये दुनिया में जो पिछले 10,000 साल से जो अंधेरा है वो अंधेरा मिट सकता है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ, मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। सो मेरी तो इतनी सबमिशन है कि आज जो कोरोना का वायरस का जो प्रॉब्लम चल रही है या और दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया में मारपीट चल रही है, वो सब बंद हो सकती है अगर इंसान को ये प्रभु का प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में ये सैकड़ों बार ये आता है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अगर आप ओम से जुड़ोगे तो आपको उसका प्रभु का, अल्लाह का, गॉड का प्रसाद आपको मिलेगा, 100% श्योर मिलेगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी धन्यवाद। एक्चुअली हमारा समय जो है वो बीता जा रहा है। आपने बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स बोले। इनफैक्ट हम लोगों को आपने बताया कि अंदरूनी शांति की बात कही, अनंतनाद को समझने की कोशिश करने की बात कही और रिलीजन का रोल बताया आपने इसमें। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भी पढ़ा कि रिलीजन और साइंस का तालमेल होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब के आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही वैल्यूएबल शब्दों को हमारे साथ बांटा। लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं स्वामी विष्णु जी महाराज। स्वामी विष्णु जी महाराज सनातन धर्म से संबंधित रखते हैं। वे राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ से, के प्रचारक हैं और प्रचार क्षेत्र इनके चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं चाहूंगी कि स्वामी विष्णु जी महाराज जी अब अपने सुंदर शब्दों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। स्वामी विष्णु महाराज जी। भुजे सेव्यवेणुं शिरसिकिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है, इस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहाई धर्म के प्रचारक जो हैं प्रोफेसर अनिल सरवाल जी, जिन्होंने हम सभी को एक मंच पर एकत्रित किया है और जिसमें इस्लाम धर्म से मौलाना अजमल खान जी, ब्रह्म कुमारी नेहा जी, क्रिश्चियन धर्म से अग्नेश जी के बहुत सारे मित्र इसमें हैं, बिशप जी के, सिख धर्म से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, हमारी बहन हरजिंदर कौर जी और मेरे पूज्य रामकृष्ण मिशन जी श्री आत्मज्ञानानंद जी, सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा। आज की इस मीटिंग में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे आचार्य लोगों ने, जिन्होंने भगवत अनुभूति प्राप्त करी है, जिन्होंने पूर्ण शांति को प्राप्त किया है, जिनमें आज के समय के जो सबसे बड़े प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु जी, आसान भाषा में रामलीला लिखने वाले रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, 4 वेद खड शास्त्र में बात मिलेंगी 2। 4 वेद हमारे,
और 6 फिलोसफीज हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं। कहते 4 वेद और 6 जो शास्त्र हैं, इसमें 2 बातें हैं मेन। वो क्या बातें हैं? दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। टू दी एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हम किसी को दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा, हम किसी को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम अगर धर्म की कोई बात बोलना चाहते हैं, नीति की बात बोलना चाहते हैं, तो पहले उसको अपने जीवन में ढालें। आपनी आचरित धर्म जीवे सिखाए। देखो ना, एक फैमिली होती है, फैमिली में पिता है, माता जी है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है। कोई अगर इस तरह बोले कि मैं तो सिर्फ अपना सोचूंगा, मैं मेरे को किसी और फैमिली मेंबर के बारे में सोचूंगा, किसी की फीलिंग्स को ना समझे, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। परिवार में अच्छा उसको माना जाता है जो अपना भी ख्याल रखे और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ख्याल रखे। लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ अपने परिवार का सोचता हूँ, मेरे पड़ोस में जो परिवार है उनके बारे में मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तो उसको, उस व्यक्ति को अच्छा माना जाता है जो अपना भी सोचे, अपने परिवार का भी सोचे, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का सोचे और कुछ उनके लिए कर सके। परंतु सिर्फ इतने में बात पूरी नहीं हो जाती। व्यक्ति अपने प्रदेश के लिए सोचेगा, पूरे देश के लिए नहीं सोचेगा, उसको भी बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा उसको माना जाएगा जो अपने लिए भी सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, पूरे देश के हित में कुछ सोचे। अब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने देश के बारे में सोचे, दूसरे देशों के बारे में सोचा, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है तो कोविड-19 की अभी वैक्सीन नहीं निकली, मान लीजिए हमारे देश में इसकी वैक्सीन निकल जाए, हमारे डॉक्टर्स जो है इस पे लगे हुए हैं, निकाल ले, और हम बोले सिर्फ अपने देशवासियों को ये वैक्सीन बताएंगे, हम ये दवाई देंगे और दुनिया में जो कुछ, जो हमको उसको परवाह नहीं है, तब भी हम शांति नहीं प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि हम संकुचित हैं। बहुत अच्छा माना जाएगा कि हम पूरे विश्व के जितने भी हैं सबके बारे में अच्छा सोचें और अच्छा कर सके उनके लिए कुछ। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं इतने से भी नहीं होगा। अब व्यक्ति मानव के बारे में सोचे, और जैसे हमारे राजेंद्र सिंह जी ने बोला, मुर्गे को काट के खा जाए तो बकरे को काट के खा जाए, तो वो तो दूसरे प्राणियों को कष्ट दे रहा है, तो उसको कष्ट मिलेगा। हमारे जैसे मैंने अभी जो प्रणाम मंत्र बोला, इस मंत्र में है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। भगवान कौन है? भगवान हिंदू नाथ, मुस्लिम नाथ, सिख नाथ या वो कोई क्रिश्चियन नाथ नहीं है। भगवान पूरे जगत के नाथ है, पूरे जगत के मालिक है। पूरे जगतवासी में जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, वो सबके मालिक है। तो जब हम उनको, अब देखो ना, कोई व्यक्ति बोले कि भगवान तो सिर्फ हिंदुओं का ख्याल रखते, बाकी का नहीं ख्याल, तो उसकी सोच छोटी है। भगवान छोटे नहीं, वो तो अपने भगवान को भी छोटा कर रहे। कोई बोले अल्लाह ताला तो सिर्फ मुस्लिम को ख्याल रखता है, बाकी को तो सबको नरक में फेंक देता है। तो बोले तुम तो इस तरह अपने खुदा की बेइज्जती कर रहे हो। तो इस तरह से कोई बोले कि गॉड तो सिर्फ क्रिश्चियन का ख्याल रखेंगे, बाकी का किसी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये नहीं। तो चाहे हम गॉड बोले, अल्लाह बोले, ओंकार बोले, हम वाहेगुरु बोले, हम भगवान कृष्ण बोले, चाहे राम बोले, वो व्यक्तित्व एक ही, पर्सनालिटी एक ही है। उनकी महिमा ये है कि वो सबके हैं, सारे उनसे आए हैं। जब तक हम अपने मूल पे नहीं जाएंगे तब तक हम शांति नहीं प्राप्त करते। जब हम मूल पे पहुंचेंगे, मूल पे पहुंचने से क्या होता है, हमारे वेद बताते हैं ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम। जब हम पूर्ण जो हैं, जो सारे विश्व के पशु पक्षी मनुष्य और उनके कारण जो भगवान, उन पूर्ण को जब हम मानेंगे, तब हमको ऐसे लगेगा कि पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम, एक परिवार है और हमको सारे परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा करना है। और जब, जहां से मैंने बात शुरू करी, अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा। दुख दीने दुख होता है, हम दूसरों के लिए दुख देंगे, हमको भी दुख मिलेगा। तो इस पूर्ण शांति जो है, आज की जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स में जो ताकत है, मैं ये बताना चाहूंगा, हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं,
हमको अपने भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये हम जब प्रार्थना करेंगे हमको खुद भी शांति रहेगी, औरों को भी शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वामी विष्णु जी महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वेदों के खूबसूरत विचार प्रकट किए, वसुदैव कुटुंबकम के बारे में बताया। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम ओवर टू स्पीक एंड to tell us about your views of in today's program, Interfaith Prayer Meeting. So Bishop Ignatius Mascarenhas. Yeah. Anyway, I am not so an expert on all this, but I am just doing this at your request. So lovely, Professor Anil Sarwal, to see you and the whole team of wonderful gurus from different faiths who have just spoken, and also Geeta, who made a little introduction. All that I want to say very, very briefly, यही बोलना चाहता हूँ कि कोरोना ने हम सबको एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नया तरीके से जीने का मिशन उन्होंने, कोरोना ने हम सबको दिया। क्या हुआ? अभी सब लोग पारिवारिक हो गए, एक घरेलू परिवार, या जैसे हम अपने ईसाई धर्म में कहते हैं घरेलू कलीसिया। हर एक परिवार एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च बन गया। क्यों? आजकल हम लोग कहाँ जा सकते हैं बाहर? हाँ, अभी थोड़े हफ्ते में शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन करीब करीब 2 महीने से हम लोग अपने घरेलू परिवारों में थे इन दिनों में। And thanks to the wonderful ways in which हम लोग पारिवारिक लोग ने एक दूसरे को संभाला, इसलिए बड़े सुंदर तरीके से कहा गया है that our family is something so beautiful that it has taught us to love each other, and that is why families have now come together in love, and also the different challenges that the families face, and God's peace has also come into so many homes. I've had so many friends हमें मैसेज भेजते हैं कि अभी बिशप जी, अभी हम लोग अपने परिवारों में परमेश्वर को याद करते हैं और अपने अपने धर्म शास्त्र पढ़ते हैं। We read our holy scriptures, we are praying together, we are staying together, we are encouraging each other, and we are growing in love for each other. So if there is something that we all need, is so beautifully said that there is nothing greater than the force of love, and it is in the home and it is in the family that we are aware of God's love, because it is in the family that we have all been born. It is to the family that we all return, and it is परिवार में ही हमारा जन्म है और परिवार में ही हम अपने आखिरी सांस लेना चाहते हैं। तो परिवार फोकस हो गया इन दिनों में, इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की प्यार, प्रभु की शांति सब में हो। और जैसे अभी हमारे सनातन दास जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। और एक तमिल में एक बहुत सुंदर लाइन है कि पूरा दुनिया मेरे रिश्तेदार हैं, पूरे दुनिया में हम एक ही परिवार के, एक ही रिश्तेदार हैं, और इसलिए हर एक भाई बहन मेरा रिश्ता है, मुझ में है। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जब प्रभु यीशु जब अपने कार्य पूरे करके स्वर्ग चले जा रहे थे, अपने मिशन कंप्लीट किए, क्रूसित किए, पुनर्जीवित हुए, स्वर्गारोहण होते समय उन्होंने कहा, मैं तुम में शांति भेजता हूँ, पवित्र आत्मा,
एक शांति आप सब में आए। वही हमारी एक पुकार है सबके हृदय में कि परिवार में, पड़ोस में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, सभी भाई बहनों में प्रभु की शांति हो। यही हम चाहते हैं, क्योंकि आज और इन दिनों में 2 महीने में सब जब हमें ये कोरोना वायरस का धक्का मिला तो सब लोग चाहते थे एक चंगाई हो। डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कैसे इस बीमारी से निकले, कोविड-19 से निकले। लेकिन सब लोग अंत में यही चाहते, प्रभु की चंगाई मिले सबको, प्रभु की शांति, प्रभु की प्यार और प्रभु की रोशनी सबको मिले। और जैसे कहा गया है, हाँ शायद अभी नहीं या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। और यदि नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, हमें वापस उन आदतों में नहीं जाना चाहिए जो हानिकारक है, जो एक दूसरे को तोड़ते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं। हमें वापस आना है तो वापस एक नए जीवन, एक नए प्यार से एक दूसरे के प्रति हमें आना है। और हमारे संत पापा ने कहा है कि the family is the institution, the most humanizing institution in the world. Humanity passes by way of the family. God bless each one of you in your homes and in your families. Thank you, Professor Anil Sarwal, for organizing this prayer and reflection for peace. God bless you, God bless your team, and God bless all of us with His peace. As Saint Francis of Assisi said, peace I leave, God's peace He gives to us. Thank you. God bless you. Thank you, Bishop Ji. You have been always in the forefront of the interfaith movement. Thank you for your message of peace and blessings. God bless you. God bless you. Thank you, Thank you Bishop so much. Ignatius. Thank you so much. Thank you, Bishop Ignatius Mascarenhas, once again for your enlightening thoughts. So we will go further now because we don't have much time. Without any delay, अब मैं आगे जाने चाहूंगी। हमारे जो अगले स्पीकर हैं, उनका नाम है स्वामी आत्मज्ञानम जी। उनका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वो सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन है। इस मिशन से काफी सालों से जुड़े हैं और यूनिवर्सल हार्मनी ऑफ रिलीजन एंड ब्रदरहुड, इनके बारे में, ऑल ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, इसके बारे में ये बातें करते हैं। अब मैं चाहूंगी स्वामी आत्मज्ञानंद जी अपने विचार है वो प्रकट कीजिए। स्वामी आत्मज्ञानंद जी। Thank you so much for organizing this beautiful program. I hope I'll be able to make you understand. I'll be speaking in English. I'm thankful to Professor Anil Sarwal ji, to all the religious leaders who have spoken beautifully about their faiths, their religions, the essence of each religion. And this is what we understand, that each religion, sab dharma, तो यही बोलता है कि मानव भगवान का शिशु है, we are all come from God, that we need to realize God, we need to understand that we belong to God. So this coronavirus has taught us some important lessons. That is how life has evolved. Life has come through a struggle, reformation, change. Change is something that's inevitable. So we have to accept it. We have to transform ourselves. We have to raise ourselves so that we are able to meet these challenges. So physically we have. Swami ji, आपकी आवाज नहीं आ रही. We can't hear you. Swami ji, we cannot hear you. There is some problem here. Maybe you go to the next one, then we can return to him when he joins. Okay, I think there's some problem. All right. So हमारे जो अब अगले स्पीकर हैं, मिसेस हरजिंदर कौर जी, ये मेंबर हैं SGPC के, यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, सिख धर्म से हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी, मिसेस हरजिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। At the outset, I am so grateful to
नेहा बहन, who was a source to meet me such pious platform. प्रोफेसर अनिल सानवल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं बस आपने इतनी अच्छी बातें करी है और एसेंस सब जगह एक ही है, शब्द अलग अलग है। मैं देख रही हूँ अभी बात कर रहे थे कि एक पिता एकस के हम बारिक, जो हमें हमारा शुरू से ही गुरु साहब ने हमें दिया है। गुरु नानक साहब की बात जो शुरू होती है एक ओंकार से, सतनाम, कर्ता पुरख, द क्रिएटर ऑफ ऑल जो है वो कहाँ है, वो कौन है और मैं क्या हूँ, वो मूल मंत्र में हम समझ लेते हैं जब हम कहते हैं कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। He is self created and good prasad and he is attained by the grace of God. कैसे अटेंड करना है उसको, हमने जीवन में प्राप्त क्या करना है। और इस समय मैं कहूंगी शाम के नित्यनेम को हम करते हैं दुख दारू सुख रोग प्या। आज के इस एपिडेमिक ने हमें बता दिया कि सुख में हम सेल्फिश होते हैं, दुख दारू कैसे बनता है। इस समय पे जो ज्ञान मैंने लिया, जो शिक्षाएं मैंने ली, जो धर्म मैंने धारण किया, उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कैसे किया आज के दिन। पहले तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, और उसके लिए क्या, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन प्यारिया जी मित्रा, तू उस हरि की अंश है। और जब तू अपने मूल को पहचान लेता है तो क्या है तेरा मूल, सैभंग, सेल्फ क्रिएटेड। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन हुए। तो क्या आज तुम्हें सबका दुख अपना दुख लगता है? क्या तुम्हें सब में एक ही ज्योत नजर आती है? आती है तो तेरी स्टेट बन गई मन जीते जग जीत। ऐसी स्टेट अगर पैदा हो जाए इस एपिडेमिक में, तो वी शुड बी थैंकफुल कि एक अपॉर्चुनिटी मिले हमें सेल्फ रियलाइजेशन की, हमें ठीक डायरेक्शन में जाने की। और आज हम देख रहे हैं वो बंगला साहिब दिल्ली में, जहां 8 वर्ष की आयु में गुरु हरकृष्ण साहब ने चिकन पॉक्स को ट्रीट करते करते अपनी जान तक दी। आज वहीं से मिलियंस को सेवा। और सब हमें सिखाया ये जाता है कि गुरु दी गोलक गरीब दा मुंह। आज दान के मतलब क्या है कि मेरा कोई भी भाई बहन इस धरती पे भूखा नहीं रहे। किसी का कोई दुख में बैठा है तो मेरा सुख किस काम का, ये हमें सिखा रही है आज का दिन। और शांति कहाँ है? हम जपजी साहब में शुरू में समझते हैं चुप्पे चुप न होए। ये बाहर का मौन मुझे शांत नहीं कर सकता जब तक अंदर की तृष्णा खत्म नहीं होगी। अंदर की तृष्णा जब मैं मूल अपना पहचान गया तो तब मुझे सब में उसकी ज्योत नजर आएगी। तो फिर एक स्टेट पैदा होती है जिसकी हम हर रोज अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत्ता पला। जो उसका प्यारा है, जो उसको अपना बाप मानता है, वो तो तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुनते नेरे। अगर उसकी कृपा में है तो हम सबके भले की अरदास करते हैं। और जब सबके भले की अरदास करते हैं तो हम यूनिवर्सली एक ही स्लोगन देते हैं, आपन मीत हम सबको कीना, हम सबना के साजन, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वो एक उसका तो मैं एक छिन्न मात्र सोर्स हूं। और गुरु नानक ने ये बात जब संसार से करी तो मक्के में भी पूजा हुई, सिद्धों के साथ गोष्ठ भी हुई, तो बात एक हुई। तो भगत रविदास जी ने इस स्टेट को क्या कहा, जब हमारी स्थिति ये आ जाए, जब इंसानियत हमारी इस कदर एक परिवार बन जाए, तो फिर ये मेरा घर, ये मेरा ब्रह्मांड क्या बन जाएगा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तथाओ। फिर वहां दुख की कोई बात नहीं हो सकती। ये दुख तो शारीरिक दुख जो है कोई दुख ही नहीं है। अगर मेरी मेंटल स्टेट इतनी बलवान है तो मुझे जीवन में बनना क्या है, यही देखना है। आज के दिन यही प्रैक्टिस करनी है। किव सचारा होइए। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, ट्रूथ इज हायर, स्टिल हायर इज ट्रूथफुल लिविंग। आज ये मेरे कैरेक्टर का, मेरे कर्म का इम्तिहान है कि मैं इंसान कितना बन पाया। क्योंकि आज की तो मुश्किल ही यही है, बड़ा मुश्किल है आज आदमी का इंसान होना। मुझे तो धर्म की दीवार में ही मैं अलग और दूसरा अलग नजर आ रहा है। इंसान को इंसान एक देखना दूर की बात है। आओ आज कामना करें मुझे सब में वो एक ज्योत नजर आए और मैं उन सब के साथ बांट के गुरु नानक साहब के गोल्डन रूल्स की बात संसार को कर पाऊं। किर्त मैं धर्म की करूं और उसको बांट के खाऊं।
और उसका नाम लेते हुए मैं उसका रूप हो जाऊं, तो फिर कहते हम ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। हमारा वो मिलाप होगा जो कभी नहीं बिछड़ने देगा, और हमें वो आरोग्य शरीर मिलेगा जिसकी ताकत से हम पूरे ब्रह्मांड को स्वस्थता दे सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इतनी इतनी पावन रूहों की ब्लेसिंग्स आज ली है, उनके प्रवचन सुने हैं। आओ हम मिलकर कामना करते हैं कि भारत की भूमि जहाँ इतने देवी देवताओं, गुरु पीरों की शिक्षाएं और इतना बड़ा इतिहास हमारे सामने है कि सज्जन ठग एक शब्द सुन के हमेशा के लिए उस ईश्वर के नाम का हो जाता है। एक पौधा राक्षस जो एक ट्राइबल भील है, जो मानुष को ही तल के खाता है, वो हमेशा के लिए प्रीचर हो जाता है। तो हम तो मानुष की देह में आए हैं, हमें तो बड़ी कृपा से ये देह मिली है, और ये मिली है हमें उसके जैसा होने पे, और उसके जैसा होने पे कुछ नहीं, एक करुणा भरा हृदय लेके जब सामने वाले में उसका रूप हम देखते हैं, तो फिर कहते हैं जिन मानस बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस के देवते किए करत न लागी बार। कहते हैं ना, ये धरती 3300 करोड़ देवताओं की धरती थी, कहाँ गए वो कहीं नहीं गए। आज पाप का बलवान हो गया। अगर आज हमारी पाप की भावना खत्म हो जाती है, अगर आज हमें उसी ईश्वरी गुणों का निवास हो जाता है, तो ये सारी मनुष्य करोड़ों की गिनती में उसी का ही रूप है, उसी प्रभु की ही सारी कायनात है। आओ हम इसी भाव से उस नीली छत में मिलके आरती किया करें। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। आओ गुरु नानक साहब ने जो हमें यूनिवर्सल प्रेयर दी है कि हम तो सभी हर रोज उस गगन रूपी थाल के नीचे सबकी खुशी, सबकी स्वस्थता, सबकी मंगल कामना करते हुए यही बोले, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सिरपत का भला। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। धन्यवाद मिसेस हरजिंदर कौर, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने एसेंस की बात कही, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही, मूल पहचानने की बात कही। हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई समुदाय की ओर से। गीता अब हमारे जी, जो नेक्स्ट स्पीकर है नहीं, हमारे साथ आत्म ज्ञानंदा जी फिर से जुड़ गए हैं। अगर 2 मिनट के लिए वो अगर पूरा करना चाहे। पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ जी जरूर। हाँ जी, उनका स्वामी जी, आत्मा ज्ञानंद जी, कैन यू हियर अस? Swami Atmagyanand ji, can you hear us? He can hear us, but I think yes, I can hear you. Okay. Thank you. हाँ स्वामी जी, आप कट हो गए थे, तो 2 मिनट के लिए प्रवचन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस 2-3 मिनट में हम खत्म कर देंगे कार्यक्रम को। जी, वो बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी जी, टेक्नोलॉजी में शायद तकलीफ हो गया है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, सबका शांति हो, तो बस यही प्रार्थना और किया। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, सब लोगों को आनंद आ रहा था। अगर 1-2 लाइनें और सुनाएंगे तो अच्छा है। कोई सब लोग तो अच्छे ही बोले, तो बहुत अच्छा है। तो ये एक मौका मिल गया तो हम भगवान की चिंता करें। This is a great, you have brought us together to think about God. In spite of all the problems, we are sitting at home and thinking of God. This is a great opportunity. So let us all sit together, work together, think together, and pray for each other so that we can have a universal outlook, expand ourselves so that we can feel one with each and every individual. जैसे वसुधैव कुटुम्बकम बोला था ना. So it's a wonderful idea that you are not just a limited human body, that you belong to the entire creation. Each one of us is a reflection of God. This is what even Jesus Christ said, that man is made in the image of God. So we are all images of God. We should see God in others, respect each other's. So that is true religion. That is true religion, not temples, mosques, or books, or churches, or whatever it is. Trying to find out the divinity within ourselves, trying to respect each other,
trying to find divinity in others, trying to love others, irrespective of all these distinctions, caste, religion, whatever it is, race. That is true religion. That will make us more and more as true reflections of God. God is infinite. God is infinite love, universal love. So we must make ourselves in the shape of God. Try to cast ourselves in the mold of God. Become like God. Be God ourselves. That is the way to freedom. That is the way to realizing our inner potential. So I pray very sincerely that all of us realize this. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. May peace be unto all. Let us move from death to immortality, from untruth to truth, and from darkness to light. Om Shanti Shanti Shanti. मैं हमारे साथ शायद गीता कुछ बरसात भी हो रही है, बाहर मौसम खराब है, कट रहे हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहाई स्थानीय आध्यात्मिक सभा का चंडीगढ़ की एक प्रयास था और पूरे दिल से बहुत ही खुशी से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप सबने हमें ये रियलाइज करवाया कि हम शरीर नहीं हैं, हम ब्रह्म का अंश हैं, हम आत्मा हैं और हमारी जो खोज है वो ईश्वर को पाने की है, उन तक पहुंचने की है। और जो ईश्वरीय अवतार आते हैं वो युग युग में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें कहते हैं कि तुम अपने लिए भी प्रार्थना करो, लेकिन दूसरे संसार के लोगों को भी अपने जैसा ही समझ के सारे संसार के लिए आप प्रार्थना करो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इतनी एकता से प्रयास करेंगे और इतनी एकता से हम ईश्वर की ओर मुड़ेंगे तो ईश्वर हमारी याचना को जरूर सुनेंगे और संसार के अंदर शांति होगी, अमन होगा। मैं एक प्रार्थना से समाप्त करूंगा। बहाई विश्वास करते हैं कि सभी धर्म एक हैं, ईश्वर एक है और सभी मानव एक हैं। और ये हमारा जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, ये उसकी एक मिसाल है जो कि हिंदुस्तान में एक आइकॉन माना जाता है आज। तो एक यूनिटी की प्रेयर के लिए प्रेयर करूंगा मैं, और यूनिटी से पीस आता है। अंदर से यूनाइट होते हैं तो हमको इनर पीस मिलता है, बाहर से यूनाइट होते हैं तो हमें बाहर का पीस मिलता है। तो हमारी इस समय जो समस्या है इनर पीस एंड आउटर पीस, तो यूनिटी की प्रार्थना करेंगे तो शायद ये समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। मैं एक यूनिटी की प्रार्थना करूंगा और फिर हम विदा लेंगे। ओ माय गॉड, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide by thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. गीता जी शायद हमारे साथ नहीं है। मैं पर्सनली जो सभी धर्मों से रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ आए और सबने मिलकर प्रार्थना की, चाहे अजमल जी थे, नेहा जी, बिशप इग्निशियस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, स्वामी विष्णु जी महाराज, स्वामी आत्मा ज्ञानंदा जी, मिसेस हरजिंदर कौर और उनके साथी, सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। गीता आ गई हैं, शायद वोट ऑफ थैंक्स गीता कर लेंगे। नमस्कार, थैंक यू। On behalf of our Baha'i community of Chandigarh, I would like to express our deep appreciation to all our very respected guests representing different faiths and religion for taking time to come together and join us in our prayers to the Almighty to bestow health and well-being on the entire family of humanity and for the relief of sufferings. Also, I would like to extend my gratitude to all dear participants for being with us today and adding their supplications to ours for the welfare of all mankind. Thank you so much once again. Thank you. For the information of everyone, we had about 70 people connected at different points of time. And Wow. So it was because of your prayers, endeavors, it was a very successful kind of... that means humanity, people are in need of search of spirituality. So that is that so many people could join. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. When Corona opens, we will have a nice interfaith gathering. Thank you very much. Thank you. Thank you. We'll look forward to it. Yes. Thank you, Anilji.